آج ہم مل کر خدا کے کلام کا مطالعہ واضح عنوان آسمانی ماں اور معجزات کی دنیا کے تحت کرنے میں کچھ وقت گزارتے ہیں۔ نئے یروشلم کا دن آ چکا ہے۔ نئے یروشلم کا دن وہ بامانی دن ہے جب آسمانی ماں اس زمین پر جسم کا خیمہ پہنتے ہوئے آئی تھیں تاکہ ہمارے کھوئے بھائیوں اور بہنوں کو بچائیں اور ہم سب کی ابدی آسمان کی بادشاہی کو رہنمائی کریں۔ اس لیے ایک بار پھر آئیں ہم مل کر خدا کے کلام کا مطالعہ واضح عنوان آسمانی ماں اور معجزات کی دنیا سے کرتے ہیں۔ آسمانی باپ کے زیادہ تر پیغامات میں سے جو انہوں نے آسمان کو اٹھائے جانے سے چند دن پہلے دیے، ان میں سے ایک تھا کہ اگر تم ماں کی سنو تو تم نیند میں بھی رائس کیک پاؤ گے۔ انہوں نے یہ پیغام مجھے آسان ترین اظہار استعمال کرتے ہوئے دیا تاکہ میں سمجھ سکوں۔ ان کی ہمارے لیے تاکید تھی کہ ہم ہمیشہ آسمانی ماں کی باتوں اور تعلیمات کے مطابق فرما برداری اور پیروی کرتے ہوئے نجات کے کام کو مکمل کرنے کے بعد آسمان کو لوٹیں۔ دیکھتے ہیں کہ جب صیون کے عزیز خاندانی اراکین آسمانی ماں کی بخشی تعلیمات کی فرما برداری ویسے ہی کرتے ہیں جیسی وہ ہیں، تو آج بھی کون سے معجزات رونما ہوتے ہیں۔ مجھے ہماری ایک کلیسیا سے خط موصول ہوا تھا۔ مئی میں اس کلیسیا کے اراکین کی تعداد 1850 تھی۔ اگرچہ بیرونی سرگرمیوں کے لیے پابندیاں عائد ہیں اور عالمی وبا کے باعث یہ بہت مشکل ہے کہ لوگوں سے شخصی طور پر ملا جائے، پر ان کے اراکین کی تعداد 1850 سے بڑھ کر 3508 ہو گئی ہے۔ مئی میں پینتیکوست کے دن پر روح القدس کی برکت حاصل کرنے کے بعد اراکین نے منادی کے تہوار کا انعقاد کیا اور محض 4 ماہ میں وہ 3508 تک بڑھ گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کلیسیا کی حاضری 1850 سے بڑھ کر 3508 تک ہو گئی۔ اس کلیسیا میں ایسی نمایاں کامیابی کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہر مہینے خدا سے جاں فشانی سے دعا مانگتے ہوئے ماں سے براہ راست برکت کا کلام سنتے تھے۔ یہ کلیسیا خوشخبری کے کام کے لیے کئی غیر موزوں حالات و واقعات میں گھری رہی ہے۔ ایسی کئی کلیسیائیں ہیں جو خوشخبری کے کام کے لیے موزوں حالات میں ہیں، تاہم یہ کلیسیا خوشخبری کے لیے اپنے مشکل حالات کے باوجود ہر مہینے تعداد میں بڑھتی رہی۔ اس کلیسیا کے نگہبان نے کہا، خدا کا کلام واقعی ہوش اڑا دینے والا ہے۔ جب اسے پوچھا گیا کہ خدا کا کلام کیوں ہوش اڑا دینے والا ہے تو اس نے جواب دیا، اس لیے کہ ہر بات خدا کے کلام کے مطابق پوری ہوتی ہے۔ نگہبان نے یہ کہہ کر شاندار خبر پہنچائی کہ ایسا معجزاتی کام دیکھتے ہوئے میں نے واقعی آسمانی ماں کے اس زمین پر آنے کے مقصد کو سمجھا ہے، اور میں گہرائی سے متاثر ہوا کہ میرے دل پر چوٹ لگی تھی۔ اس لیے اس سال یک دلی سے یہ عزم کرتے ہوئے کہ اپنے خوشخبری کے جوش و ولولے کو مستحکم کریں، تاہم خدا نے ستمبر کے اختتام تک ان کے منصوبے کے 4 مہینے قبل ہی انہیں 3508 پر پہنچنے کا معجزانہ نتیجہ بخشا، جو ان کے ہدف سے آگے نکل گیا تھا۔ اس کلیسیا کا نگہبان اکثر آسمانی ماں سے رابطہ نہیں کرتا، لیکن صرف تب جب اسے اشد ضرورت ہوتی ہے۔ جب اراکین اس سال خاص ہدف پورا کرنے کے لیے پرعزم تھے، تب نگہبان نے ماں سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا کہ ان سے برکت کا کلام سنیں، کیونکہ جو کچھ وہ کہتی ہیں پورا ہوتا ہے۔ نگہبان نے کہا، جو کچھ ہوا ہے ناقابل یقین ہے۔ 1 ماہ گزر گیا اور پھر ایک اور ماہ گزر گیا، تب اسے احساس ہونے لگا کہ جو ہو رہا ہے وہ ہرگز انسانی قوت سے ممکن نہیں ہو سکتا۔ عالمی وبا میں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تاہم
आसमानी माँ के बख्शे कलाम पर तवक्कल करते हुए वो अपने मंसूबे के साथ आगे बढ़ते रहे और एक एक करके अपने हदफ के करीब जाते हुए वो खुद को देखते रहे। निगहबान को एहसास हुआ कि खुशखबरी का काम सुस्त है और हमारा हदफ भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि हम ईमान में कम थे या हमें बिल्कुल ईमान नहीं था। ताहम हमारा हदफ पूरा हुआ जब हमने ईमान से खुशखबरी का काम अंजाम दिया था। इसलिए हम सब ने अज़्म किया कि आइंदा अपने आसपास हालात व वाक़यात को अपनी खुशखबरी के सुस्त काम की तरक्की का बहाना नहीं बनाएंगे। मुझे भेजे गए उसके खत में उसने अपने एहसासात का इजहार किया था और मैं इसे आपके साथ बांटना चाहता था। आज के वाज का उन्वान है आसमानी माँ और मोजज़ात की दुनिया। जब हम इस पर एक गहरी नजर डालें कि बाप के जमाने में और बेटे के जमाने में खुशखबरी का काम कैसे हुआ था, तो हम समझ सकते हैं कि खुदा बाप और खुदा माँ जो कि रूह और दुल्हन हैं, रुल कुद्स के जमाने में खुशखबरी के काम की कैसे क़यादत कर रहे हैं। माजी में जो कुछ हुआ उसके जरिए हमें जल्द इस सबक को गिरफ्त में ले लेना चाहिए। जब हम यशवा के काम, मूसा के काम और जदौन के काम की तरह पुराने एहतनामा के कामों पर एक नजर डालें, तो उन सब में एक बात यकसां थी। ऐसे कई माजरे थे जो हमें यूं हैरान करते हैं, क्या ये मोजज़े मुमकिन होते अगर वो इन कामों को अपनी जाती कुव्वत से यानी इंसानी कुव्वत से करने की कोशिश करते? इन मोजज़ों में से कोई भी इंसानी कुव्वत के साथ नहीं हो सकता है। आपके ख्याल से क्या बहरे कुलजम इंसानी कुव्वत से तकसीम हो सकता था? क्या यरीहो खुद ब खुद गिर सकता था अगर इसराइलियों ने इसे अपनी कुव्वत से गिराने की कोशिश की होती? जब यशवा और उसकी फौज अमोरियों से लड़ी थी, तो क्या आपके ख्याल से उनकी कुव्वत के जरिए सारा दिन सूरज आसमान के बीच रुका रह सकता था? आपके ख्याल से क्या चांद के लिए अपने मुकर्ररा वक्त पर जाहिर हुए बगैर रुकना मुमकिन होगा? इन तमाम माजरों में जो एक बात यकसां है वो ये कि अगर ये इंसानी कुव्वत से हुए होते तो इनमें से एक भी काम नहीं हो सकता था। जैसे कि बहरे कुलजम दो हिस्से नहीं हो सकता था, यरीहो का शहर ना गिर सकता था और सूरज ना रुक सकता था। ताहम खुदा की कुव्वत से सूरज रुक गया, बहरे कुलजम दो हिस्से हुआ और यरीहो का शहर गिर गया था। इसी तरह से इस जमाने में हमारे खुशखबरी के काम भी हैं। अगर हम खुशखबरी का काम सयून के अरकान की तादाद पर इन्हिसार करते हुए अंजाम दें, तो ये खुशखबरी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकेगी। जिस खत का जिक्र मैंने किया उसमें जो उस कलीसिया के साथ हुआ उनकी मिसाल से भी हम देख सकते हैं। मौजूदा भाई और बहनों की देखभाल करते हुए जिस पर कि बहुत वक्त लगता है और ये आसान नहीं होता, उस कलीसिया के अरकान हर माह ज्यादा से ज्यादा नए भाई और बहनों की रहनुमाई सच्चाई को करते रहे और उनकी देखभाल भी करते रहे। अगर ये इंसानी ताकत से किया जाता तो मुमकिन ना होता। अगर 400 अरकान एक महीने में सच्चाई में आएं, तो उन्हें सिखाने और उनकी देखभाल करने में बहुत वक्त और मेहनत लगती है। इनके अलावा ज्यादा से ज्यादा अरकान हर महीने ढूंढे जाना जारी रहता है। ऐसी सूरत हाल में जहां नए अरकान ने अब तक दूध नहीं छोड़ा, तो हत्ता कि उनमें से नए अरकान को कौन सिखा सकता है? इसके बावजूद खुदा ने उन्हें हर महीने ज्यादा से ज्यादा फल लाने की इजाजत दी है। ये सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि उन्होंने फोन पर माँ के बख्शे इस कलाम की फरमाबरदारी की थी कि मैं इस काम की इजाजत देती हूँ, मैं दुआ करूंगी कि ये मुकम्मल हो जाए, मैं आपके हदफ के लिए बरकत देती हूँ। माँ के कलाम के मुताबिक वो हर महीने अपने हदफ तक पहुंचते रहे, बल्कि वो अपने हदफ से आगे निकल गए जो उन्होंने असल में बनाया था। इस उम्दा काम को देखते हुए जो मई से सितंबर तक पेंतिकोस्त के मुनादिक त्यौहार के दौरान हुआ था, निगहबान हैरान रह गया और इसे अपने तक ना रख सका। इसलिए उसने इस खुशबू को बांटने का फैसला किया।
जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर हम इसे सिर्फ अपनी जाती ताकत से करने की कोशिश करें तो ये काम नहीं हो सकता। बहरे कुलजम दो हिस्से नहीं हो सकता था और ना ही शहर यरीहो गिर सकता था। सूरज भी रुक नहीं सकता था। ताहम खुदा की कुव्वत से बहरे कुलजम दो हिस्से हुआ। यरीहो शहर गिरा और सूरज रुक गया था। खुदा में ऐसी अजीम कुव्वत मौजूद है। इस जमाने में ताहम खुदा ने अपनी कादर मुतलिक कुव्वत इन उम्दा मौजज़ात से जाहिर नहीं की है। 2000 साल पहले जब यीशु इस जमीन पर आए थे तो उन्होंने कई ऐसे काम किए थे जो आम लोग आसानी से समझ नहीं सकते थे। जैसा कि आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि यीशु ने 5000 लोगों को 5 जौ की रोटियों और 2 मछलियों से खाना खिलाया था और हत्ता कि रोटी और मछली के बचे हुए टुकड़ों के 12 टोकरे जमा किए गए थे। वो पानी पर चले और उन्होंने एक औरत को शिफा दी थी जिसके 12 सालों से खून जारी था। उन्होंने ऐसे काम हर लम्हे पर नहीं किए थे, लेकिन जब हम इन सब माजरों पर एक नजर डालें जो उनकी खुशखबरी की जिंदगी में यके बाद दिगरे रुनुमा हुए थे, तो हम सब समझ सकते हैं कि खुदा के कलाम का इख्तियार कितना ताकतवर है और कैसे उनके कलाम के मुताबिक हर काम हुआ था। खरूज बाब 14 की तरफ जाते हैं और खुदा के मौजज़े को देखते हैं। आयत 21 में यूं मरकूम है कि फिर मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और खुदावंद ने रात भर तुंद पूर्वी आंधी चलाकर और समुद्र को पीछे हटाकर उसे खुश्क जमीन बना दिया और पानी 2 हिस्से हो गया। ऐसा मौजज़ा हमारी ताकत से नहीं हो सकता है। ताहम चूंकि खुदा हमारे साथ हैं और अपनी कुव्वत का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इस किस्म के मौजज़े वाकई वकूअ में आ सकते हैं। यशफा बाब 6 की तरफ जाते हैं। यशफा बाब 6 आयत 4 में यह कहा गया है कि और 7 काहिन संदूक के आगे आगे मेंढों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चलें और 7वें दिन तुम शहर की चारों तरफ 7 बार घूमना और काहिन नरसिंगे फूंकें। और यूं होगा कि जब वो मेंढे के सींग को जोर से फूंकें और तुम नरसिंगे की आवाज सुनो तो सब लोग निहायत जोर से ललकारें, तब शहर की दीवार बिल्कुल गिर जाएगी। जैसा खुदा ने कहा था वैसा ही हुआ। चूंकि खुदा ने कहा था कि यरीहो गिर जाएगा, तो इस्राएली पहले शहर को जिसका उन्हें कनान में सामना हुआ था बड़ी आसानी से फतह करने के काबिल हुए थे। यरीहो जैसा बड़ा शहर हरगिज इंसानी कुव्वत से गिर नहीं सकता था। ताहम जैसे ही खुदा की कुव्वत ने काम किया, ये इस तरह गिर गया जैसे था ही नहीं। यशफा बाब 10 आयत 12 से पढ़ते हैं। ये कहा गया है कि और उस दिन जब खुदावन ने अमोरियों को बनी इसराइल के काबू में कर दिया, यशफा ने खुदावंद के हजूर बनी इसराइल के सामने ये कहा, ए सूरज तू जिबोन पर और ए चांद तू वादिया अयालोन में ठहरा रहे। और सूरज ठहर गया और चांद थमा रहा जब तक कौम ने अपने दुश्मनों से अपना इंतकाम ना ले लिया। क्या ये आशर की किताब में नहीं लिखा है? और सूरज आसमान के बीचों बीच ठहरा रहा और तकरीबन सारे दिन डूबने में जल्दी ना की। आपके ख्याल से क्या ये इंसानी कुव्वत से मुमकिन होगा कि सूरज को आसमान में ठहरा दिया जाए या चांद को इसराइल की फतह की खातिर थमा दिया जाए? ये इंसानी कुव्वत से नामुमकिन होता। वो काम जो हमारी कुव्वत से नामुमकिन है वो खुदा की कुव्वत से यकीनन मुमकिन है। जब हम खुशखबरी के माहौल को देखें जो हमें इस जमाने में सौंपा गया है, तो शायद हम ताजुब करें कि मैं खुशखबरी के बेहतरीन नतीजे को हासिल करने के लिए क्या कर सकता हूँ। तमाम जवाबात किताब मुक़द्दस में दर्ज हैं। अगर हम खुशखबरी के काम को अपनी ताकत से करने की कोशिश करें तो ये खुशखबरी सामरिया या जमीन की इंतहा के नजदीक भी नहीं जा सकती। ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुशखबरी में रुकावट डालते हैं और हमारी राह में बहुत सी रुकावटें होती हैं। खुशखबरी का काम आसानी से नहीं हो सकता। बहरे कुलजम एक रुकावट था।
यरीहो एक रुकावट था और सूरज जो तेजी से गुरूब हो रहा था एक रुकावट था। ताहम जब खुदा ने अपनी कुव्वत इस्तेमाल की तो ये तमाम रुकावटें दूर हो गईं, जैसे वो कुछ भी नहीं थीं। हमें खुशखबरी का काम खुदा के वादे के कलाम पर तवक्कल करते हुए पूरा करना चाहिए। बाप के जमाने में खुदा के लोग खुदा यहोवा के कलाम पर तवक्कल करते थे। बेटे के जमाने में लोग यीशु मसीह के कलाम पर तवक्कल करते थे। रूहुल कुद्स के जमाने में हमें यीशु के नए नाम मसीह आनसंगोंग पर और नए यरूशलेम आसमानी माँ के कलाम पर तवक्कल करना चाहिए। उनके कलाम पर तवक्कल करके खुशखबरी के काम को अंजाम देना बहरे कुलजम को दो हिस्से कर सकता और शहर यरीहो को गिरा सकता है। क्या कुछ नामुमकिन है? हरगिज नहीं। खत भेजने वाले निगेबान ने कहा कि उसके रूहानी रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने कहा कि खुशखबरी का अच्छा नतीजा लाना तब मुश्किल था जब उसने माँ के कलाम को महज बरकत का कलाम या हौसला अफजाई का कलाम समझा था। पहले उन्होंने एक माह में 50 या इससे कम अराकीन ढूंढने में भी मुश्किल महसूस की थी। ताहम उन्होंने देखा कि जब उन्होंने ईमान रखा कि माँ का कलाम यकीनन पूरा होगा तो खुशखबरी के सब दरवाजे बहुत आसानी से खुल गए। आप सब जब यीशु इस जमीन पर 2000 साल पहले आए थे तो क्या उन्होंने दो अंधे आदमियों को अपना कलाम नहीं बख्शा था? अंधे आदमी यीशु के पास आए और कहा, ए इब्ने दाऊद। यीशु ने उनसे पूछा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने जवाब दिया, मेहरबानी से हमारी आंखें खोल दें ताकि हम दीगर लोगों की मानिंद देख सकें। हम चाहते हैं कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु ने कहा, तुम्हारे इत्काद के मुआफिक तुम्हारे लिए हो। आज सुबह मैंने बास पास्टर से 30 साल पहले होने वाले एक वाक़ये पर बात की थी। एक बीमार बच्चा था जिसे डॉक्टर ने बताया कि वो सेहतयाब नहीं हो सकता। वो एक डीकन का बेटा था। ऐसा होने से पहले बच्चे के वालिदैन अपनी आंखें दुनिया की जानिब मोड़ने लगे थे। वो ऐसी रूहानी तशवीशनाक सूरत हाल में थे कि उनकी जिंदगियां इस तरफ जारी रहती। उस वक्त उनका बच्चा बीमार पड़ गया। वो इतना बीमार पड़ा कि डॉक्टर ने कहा कि वो कभी सेहतयाब नहीं हो सकता। उन्हें बताया गया कि वो सियोल अस्पताल में भी सेहतयाब नहीं हो सकता। वहां डॉक्टर ने उन्हें बताया कि बच्चा जो चाहता है उसे खाने को दें और जो वो चाहता है उसे करने दें, क्योंकि वो जिंदा नहीं रह सकता। उन्होंने उनके बच्चे का तफसीली तिबी मुआयना किया था ताकि बताएं कि वो सेहतयाब नहीं हो सकता। तब उन्होंने आसमानी माँ को फोन किया। उस वक्त माँ अराकीन को शख्सी तौर पर मिलने का वक्त निकाल पाती थीं, क्योंकि हमारे इतने ज्यादा अराकीन या सारे कोरिया में कलीसियाएं नहीं होती थीं और सारी दुनिया में भी जैसे कि अब हैं। माँ डीकन के खानदान से मुलाकात के लिए गईं, उन्हें तसल्ली दी और उनके बच्चे के लिए दुआ की। माँ के उसके लिए दुआ करने के बाद से वो बेहतर होने लगा था। अब वो बच्चा बड़ा हो चुका है और ब्राजील में मिशनरी के तौर पर काम कर रहा है। हत्ता के कई तफसीली तिबी मुआयनों के बाद डॉक्टर ने उसके वालिदैन को बताया था कि उसके पास ज्यादा दिन नहीं बचे। जब माँ उनसे मिलने गई थी तब मैं भी उनके साथ था। डीकन के बच्चे से मुझे उन बच्चों की याद आई जिनके लिए खैराती तकारीब से रकम जमा करने की जरूरत पड़ती है, जिनमें कहा जाता है, मेहरबानी से हमारे काम के लिए अतिया दे दें। उसका चेहरा बहुत छोटा हो गया था और उसके बाजू और टांगे बगैर पट्टों के हड्डियों का ढांचा थी। सिर्फ उसका पेट बड़ा था क्योंकि वो सूजा हुआ था। वो अपनी बीमारी के आखिरी दर्जे पर था क्योंकि रसोली का हजम वहां बढ़ रहा था। चूंकि उसके लिए कोई दवा असर नहीं कर रही थी, इसलिए डॉक्टर ने उसे बताया कि वो मजीद कुछ नहीं कर सकता। उस जोड़े ने माँ से मदद मांगी और माँ ने उन्हें बताया, आपको खुदा पर 100% ईमान रखना चाहिए। उस वक्त उनका ईमान कदरे कमजोर था और वो दुनिया और सच्चाई के दरमियान लड़खड़ा रहे थे। ताहम माँ की दुआ से उनका ईमान मजबूत होने के बाद
बच्चा सेहतयाब हो गया था। वो सेहतयाब होने लगा था और अब वो तंदुरुस्त है। उनसे मुलाकात के दौरान माँ ने उनसे कहा, ये नामुमकिन है अगर आपका खुदा पर 100% ईमान नहीं है, इसलिए आपको 100% ईमान की जरूरत है। वो उनका इकलौता बच्चा था, इसलिए उन्होंने अपना जी उसमें लगा दिया था। मुजजाना तौर पर उनके बच्चे ने सेहतयाबी हासिल की थी। मैं भी इसका यकीन नहीं कर सका था। मैं इसका यकीन नहीं कर सका था क्योंकि मैंने देखा था कि वो कितना बीमार था। ये दिखाता है कि खुदा का फजल हमारे लिए कितना बड़ा है। ताहम हम बार बार खुदा के इस फजल को भूलते रहते हैं। अगरचे यीशु ने बहुत से काम किए और कई बातें कही थीं, पर लोग उनके कलाम के इख्तियार को भुला देते थे। ऐसा लगता है कि हम खुदा की सूरज को ठहराने, यरीहो शहर की दीवारें गिराने और बहरे कुलजम को खुश्क जमीन बनाकर 2 हिस्से करने की कुव्वत को भुलाते रहते हैं। इसलिए जब खुदा हमें कहते हैं कि खुशखबरी की मुनादी सामरिया और जमीन की इंतहा तक करो, तो खुदा ने पेशतर ही हमें खुशखबरी के काम की तकमील के नतीजे का कलाम बख्श रखा है। खुदा हमसे ऐसे काम नहीं करवाते जो हमारे लिए करने नामुमकिन होते हैं। चूंकि खुदा हमें हर चीज पूरा करने की काबिलियत बख्शते हैं, तो हमें हमेशा उनके कलाम पर इन्हिसार करना चाहिए। खुदा के कलाम पर इन्हिसार करते हुए हमें मुस्तैदी से अपनी बाकी जिंदगी में खुशखबरी का काम करना चाहिए। मैं आपसे एक बार फिर कहूंगा कि बाप और माँ के कलाम की कुव्वत को अपने दिलों पर कंधा करें और याद रखें कि खुशखबरी का काम आसानी से तब होता है जब खुदा ये करते हैं। लूका बाब 5 आयत 4 से देखते हैं। बाब 5 आयत 4 में कहा गया है कि जब कलाम कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमौन यानी पतरस ने जवाब में कहा, ए उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, यानी कोई मछली ना पकड़ी, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूं। ये किया और वो मछलियों का बड़ा गोल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां यहां तक भर दी कि डूबने लगीं। शमौन पतरस ये देखकर यीशु के पांव में गिरा और कहा, ऐ खुदावंद, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनाहगार आदमी हूं। आज आए हम एक बार फिर इस हकीकत को कंधा करें कि हर काम खुदा के कलाम के मुताबिक हुआ था, और ये हकीकत कि बाप और माँ अब तक निजात की खुशखबरी का बड़ा काम अंजाम दे रहे हैं। किसी एक को भी छोड़े बगैर से उनके सब फर्जंद बाप और माँ के काम में शरीक हों, ताकि हम खुदा के अजीम जलाल में दाखिल हो सकें। उम्मीद करते हुए कि आपने खुदा के इस कलाम से ज्यादा फजल हासिल किया है, मैं आज का वाज खत्म करता हूँ।